हाँ स्क्रीन शेयर कर लो आप। अभी स्टार्टिंग इवेंट चल रहा है, ये प्रोसेसिंग। हाँ मैं अभी 2 मिनट लूंगा तो फिर good morning everyone. It is a great pleasure that GIT is organizing this workshop, student workshop on advances on database management system. I would like to thank Honorable Vice Chancellor, Professor Ari Gupta sir, Dhirendra Mathur sir, Coordinator TechU, Hari Sharma sir, Nodal Officer Academics, TechU 3, our Honorable Vice Chairman, Rajkumar Kandoi sir, Naman sir, JP Agrawal sir, our Principal Dr. Aishi Sharma sir, and our Director Dr. Nidhi Jain ma'am. And special thank to our coordinator Rajesh Rajan sir, who is coordinating this workshop. Students, as you all aware that placement season is about to start, and this particular workshop will be very helpful because as you all aware that in all IT companies, frequently the subject which is asked mostly in interview are C programming language, data structure and algorithms, and database management system, because everything is in computer science is based on data, and how to store that data and how to manage data, that we all study in database management system. And our expert Professor Sanjay Jain sir will discuss the different advances in database management system, how you can utilize in the data which is stored in database management system in a better way. So I'll not take your much of time, and I'll invite our expert Professor Sanjay Jain sir, and who will deliver the expert talk on this particular topic. And I wish you all the best. Hopefully, you will gain a knowledge in next 5 days. And I request you all, please take or attend this workshop very sincerely. This will be very helpful in your placements and in the corporate world too. Thank you so much. थैंक यू Sir, शाहिद सर। शाहिद over सर, to you, शाहिद sir. सर, 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 हेलो, शाहिद सर। Yeah, good morning to all the students and faculty members and the organizer team of this Tech UIP. Myself Sanjay Jain. Am I audible? And this screen is visible to all? Hello, 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 hello. शाहिद सर, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी वहां पे? है नहीं, मैं एक्चुअली बच्चों से किसी से इंटरेक्ट करना चाहूँ, उनका रेस्पॉन्स नहीं आएगा। हैं? अच्छा, नहीं स्क्रीन पे नहीं, सपोज ऑनलाइन अगर मेरे को उनसे इंटरेक्ट करना है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअली मैं इससे फैमिली नहीं था। चलिए जो भी है, चलिए, थैंक यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई थिंक everyone is listening me. Myself Sanjay Jain, I am working as an assistant professor in MIT University, and today here we are going to
discuss about DBMS in these areas. First of all, what is database and why do we use database? Why we shifted from database, file system to database? Why actually it requires database in our daily life, and their applications and so many, and their architecture is also there. But before starting this database, I would like to share my this screen. ये आई थिंक ये स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही होगी. अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो ये विजिबल है. इज दिस विजिबल? प्लीज एनीबडी कैन टेल मी अबाउट दिस. Yes, sir, it's visible. ठीक है, ओके, थैंक यू. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस database management system, whatever we input in computer, in normal programming, normal computer, whatever we input, that is called raw facts. And that raw facts, when we arrange in a systematic manner, then we say that that is an information, है ना. सेम चीज जब हम सिंपल फाइल सिस्टम पे, पहले हम फाइल सिस्टम लेंगे, बाकी फिर डिटेल्स हम बाद में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोग के कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल लेता हूं कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक फाइल सिस्टम, अभी कोई कंप्यूटराइज सिस्टम हमारे पास में नहीं है, हम जस्ट फाइल सिस्टम पे काम कर रहे हैं. एंड फाइल सिस्टम में भी स्पेशली हम रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं. अभी कंप्यूटर नहीं है तो हम सिंपल पेपर्स पे सारी एंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं. एंड सपोज मैंने बोला कि मेरे को स्टूडेंट का नेम चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए, एंड उनके सपोज कॉन्टेक्ट नंबर्स चाहिए, मोबाइल नंबर्स चाहिए, मोबाइल नंबर्स. अब अगर हम इस फॉर्मेट में एक पेपर पे इस टाइप से आप लाइंस खींच देते हो एंड इसको आपने इस टाइप से मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. अभी हम पेपर की बात कर रहे हैं, डेटाबेस की हम बात नहीं कर रहे, सिंपल फाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये आपके नेम है, एड्रेस है, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, कॉलम नेम्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं कि दैट इज योर एट्रीब्यूट्स. दीज आर एट्रीब्यूट्स. In database terms we can say this is attribute. And in columns में हमने कोई एक नाम एंटर किया है, एड्रेस से एड्रेस 1, मोबाइल नंबर से 111, नेम B, एड्रेस इज एड्रेस 2, and this. These are called rows. And database के फॉर्म में अगर हम इनको बोले तो these are called tuples. ठीक है. अब ये एक सिंपल पेपर वर्क पे हम काम कर रहे हैं, तो पेपर वर्क पे काम करने के लिए मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूं. फाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो अब हम एक छोटा सा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसमें आपका एक एडमिन ब्लॉक है. एडमिन ब्लॉक में जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो आपकी सारी डिटेल वहां पे एडमिन ब्लॉक में आ जाती है. एंड सपोज उस एडमिन ब्लॉक में एक मैंने नाम दे दिया, से इन्फो नाम का मैंने नाम दे दिया, जिसमें वो आपसे आपका नेम एंटर करा लेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स में एड्रेस ले लेगा, आपका फ़ोन नंबर ले लेगा, एंड पेरेंट्स की डिटेल, फादर्स नेम एंड सो ऑन, ये डिटेल्स आपके ले लेगा. ये काम हो रहा आपका एडमिन पार्ट पे, कि जहाँ पे पेपर वर्क में उसने एडमिन में आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा ली. अब आप डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं. फॉर एन एग्जांपल, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो इन डिपार्टमेंट आपसे, क्योंकि हम पेपर पे काम हो रहा है, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे आपसे वापस से ये सारी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल्स ली गई थी वो वापस से यहाँ रिपीट होकर के आएगी. एंड उसके बाद आपका डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिटेल आ जाएगी कि भी आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, तो डिपार्टमेंट नेम, एंड से जैसे हमारे इंजीनियरिंग का रहता है, फिर उस इंजीनियरिंग में भी ब्रांच कौन सी है, तो आप किस ब्रांच में हो, एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आ गई. सेम
अब आप लाइब्रेरी के अंदर गए, आपने लाइब्रेरी में भी वहां पे आपसे यही डिटेल्स पेपर पे रजिस्टर में मेंटेन हो रही है, तो आपकी वापस से यही पर्सनल डिटेल्स इस जगह पे आ गई, क्योंकि लाइब्रेरी वाले को भी आपका नाम, एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल्स एंड सारी डिटेल्स उसको रिक्वायरमेंट रहेगी। प्लस साथ में वो आपसे पूछ लेगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, तो ये कॉलम भी आपका फॉर एन एग्जांपल ऐड कर लेगा। देन उसके बाद ब्रांच से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड डिटेल कि आपने लाइब्रेरी में सपोज कितने नंबर ऑफ बुक्स आपने इशू करवाई है, बुक्स इशू एंड डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिटर्न एंड सो ऑन, ये सारी डिटेल्स वहां पे दे रखी है। अब देखा जाए तो ये डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल, ये पर्सनल डिटेल अगेन एंड अगेन रिपीट होकर के आ रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम फाइल पे काम कर रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, तो अगेन एंड अगेन वो डिटेल रिपीट होकर के आ रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फाइल सिस्टम पे हमने काम किया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब एक स्टूडेंट ने, या ब्रांच में भी एक स्टूडेंट ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर लिया। अब कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, मोस्टली हम चेंज भी करते रहते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो सपोज वो डिपार्टमेंट में था, एंड मैं कहता हूँ कि ये एडमिन ब्लॉक कहीं आपका अलग है, डिपार्टमेंट कहीं और है, एंड लाइब्रेरी कहीं और है, एंड आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर चेंज किया, तो क्या हुआ कि आपने डिपार्टमेंट में जाकर के, यहाँ पे जाकर के डिपार्टमेंट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करवा लिया कि सर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पहले ये था, अब आपने फ़ोन नंबर ये करवा लिया। फिर आपने कहा कि एडमिन में जब उधर जाऊंगा तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करा लूंगा, या लाइब्रेरी में जब जाऊंगा तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करा लूंगा। अब आप बहुत टाइम से गए ही नहीं, तो क्या हुआ, लाइब्रेरी वाला आपको फ़ोन कर रहा है कि प्लीज़ रिटर्न योर बुक, बट वो नंबर किसी और के पास अलॉट हो गया, या वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या एडमिन में अगर कुछ उनको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको कॉल कर रहे हैं, बट वहां पे कुछ और ही पर्सन बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना नंबर चेंज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि योर डेटा इज, फर्स्ट पॉइंट, जब हमने सेम चीज रिपीटेशन हो रही है, ये पर्सनल डिटेल सब जगह रिपीट होकर के आ रही है, इट मींस दिस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, कि आपका सेम डेटा अगेन एंड अगेन रिपीट होकर के आ रहा था, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी, जो हम आगे ये डिटेल में सारी थ्योरी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक जगह तो आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर लिया, बाकी जगह आपने अपडेट नहीं करवाया। इसका मतलब क्या हुआ, योर डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, कि इन्फो एडमिन में आपका कॉन्टेक्ट नंबर अलग है, लाइब्रेरी में वो पुराना बता रहा है, बट डिपार्टमेंट क्योंकि आप वहीं पे काम कर रहे थे तो आपने इमीडिएटली उसको अपडेट करवा दिया। यानी क्या हुआ, डेटा इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज योर नॉट कंसिस्टेंसी, तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। एंड थर्ड, काफी आजकल लाइब्रेरी जाते ही नहीं है बच्चे, तो लाइब्रेरी में आपने अकाउंट तो ओपन करवा लिया, लेकिन बहुत टाइम से वो आपका अकाउंट यूज में नहीं आ रहा, और स्टूडेंट्स अकाउंट्स को यूज में ले रहे, लाइब्रेरी को यूज में ले रहे, बट वो आपका अकाउंट अभी भी यूज में नहीं आ रहा, एंड बहुत टाइम से इनएक्टिव पड़ा हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि रजिस्टर में वो पेज आपका खाली पड़ा हुआ है, यूज में नहीं आ रहा, एंड अननेसेसरीली वो पेज आपके रजिस्टर में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यानी क्या हुआ, वो आपका डेटा, वो पेज अभी पूरे सिस्टम से अलग है, यानी दैट इज आइसोलेटेड, इन द आइसोलेटेड फॉर्म। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने फाइल सिस्टम का देखा, अब इस फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको कोई भी चीज अपडेट करना है तो सब जगह जाना पड़ रहा है, या फॉर एन एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी या कॉलेज छोड़ दिया, तो उसका रिकॉर्ड मेरे को एडमिन से रिमूव करना पड़ रहा है, डिपार्टमेंट से उसके पेज को रिमूव करना पड़ रहा है, लाइब्रेरी से, हॉस्टल या और अदर जहाँ जहाँ पे भी सारा डेटा आपका मेंटेन हो रहा है, वहां से मेरे को इंडिविजुअली एक एक पेज को क्रॉस करना पड़ रहा है, या वहां से आपके रजिस्टर में से पेज को निकालना पड़ रहा है। This type of problem we faced in file system, but while working with single computer, file system is better than
डेटाबेस। रीजन, क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, बस एक प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट हो रही है। बाकी अगर हम फ्यूचर की बात करें, आगे की सोच लेकर के चले, तो एक सिंगल कंप्यूटर पे नहीं, मल्टीपल कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, या हम लैन में या वैन में या वेब पे जब हम काम करते हैं, वेब एप्लीकेशंस पे, तब फाइल सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या है, हमें फाइल सिस्टम से शिफ्ट होना पड़ा डेटाबेस पे। अब डेटाबेस पे हमें क्यों शिफ्ट होना पड़ा, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ी, तो अब देखिए ये जो अभी हमने काम किया कि फाइल सिस्टम में, रजिस्टर में हमने ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, डेटा आपका रिडंडेंट है, कंसिस्टेंट भी नहीं है, एंड एक जगह आपका डेटा आइसोलेट भी हो गया, एंड उनमें आपस में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है कि एक में चेंज किया तो डेटा इज कॉन्करेंट, कि एक में चेंजेस किए तो रिफ्लेक्शन सब पे आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम डेटाबेस पे आते हैं। तो डेटाबेस अभी मैंने बताया आप लोगों को कि वॉट एवर वी इनपुट इन द कंप्यूटर, अब यहाँ पे कंप्यूटर ना होकर के हम एक टेबल के फॉर्म में कुछ भी इनपुट करते हैं। सपोज मैंने रोल नंबर दिया, नाम दिया, उसका एड्रेस दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए, तो ये सारी डिटेल्स क्या है, दिस इज योर डेटा, एंड दिस डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो दैट इज योर डेटा। तो उसको, एंड उसको जब हम उस टेबल से रिकॉर्ड को फैच करवाते हैं, तो दैट इज योर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम इसको कैसे यूज में लेते हैं, तो मैं ये एक बार स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार मेरे को बोल दीजिएगा, इफ यू हैव एनी डाउट इन रिगार्डिंग दिस, प्लीज। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, चलिए। अब हम डेटाबेस की हम बात करते हैं, इसको फिर हम प्रैक्टिकली, जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये हम प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। थ्योरेटिकल पार्ट हम फिर बाद में पढ़ते रहिए। तब यहाँ पे हम डेटाबेस में, अब कंप्यूटर सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, तो हम टेबल्स में काम करते हैं। अब टेबल्स के लिए मैंने फर्दर अगेन, ये मैंने एक इन्फो नाम की टेबल बना ली। दिस इज योर टेबल। अब इस इन्फो नाम की टेबल में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है, से नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, एंड और भी आपकी पर्सनल डिटेल्स। आप डिपार्टमेंट में आए, ये आपकी टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, एंड इसमें भी अगर मैं ये वापस से पर्सनल डिटेल्स ले लेता हूँ, तो फिर डेटा रिडंडेंसीज हो जाएगी। अब उस डेटा रिडंडेंसीज को रिमूव करने के लिए आगे के फर्दर मॉड्यूल्स में आपके नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, जो दूसरे प्रोफेसर्स आपको बता देंगे। तो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि ये जो मेरा रिकॉर्ड या ये जो मेरा डिजाइनिंग पार्ट है, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। नॉर्मलाइज्ड इन द फॉर्म मीन्स there is no redundancies, there is no repetition of the data, एंड आगे अभी हम इनमें रिलेशंस भी मेंटेन करेंगे, तो वो हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे अब डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ पे दे दिया कि से डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट नंबर या नेम कर दिया, डिपार्टमेंट नेम, आपकी ब्रांच, एंड सपोज डिपार्टमेंट में आपने कोई फाइन दिया है तो डिपार्टमेंटल फाइन, एंड सो ऑन। आप लाइब्रेरी के अंदर आए अगेन, तो लाइब्रेरी में आपका नंबर ऑफ बुक्स, आपको कितनी इशू हो सकती है, नंबर ऑफ बुक्स, एंड डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिटर्न, ये किस किस डेट को आप ये रिटर्न कर रहे हैं, एंड और भी इसके बहुत सारे फील्ड्स। एंड सपोज एक मैंने फाइन ले लिया कि भी लेट जमा कर रहा है तो आपसे फाइन को चार्ज कर रहा है, दिस। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, उसने एंट्री लिया कॉलेज के अंदर, जिसका रोल नंबर मैंने बोला, उसका नाम मैंने बोला कि ए नाम का एक स्टूडेंट है, उसका एड्रेस सपोज बोला एड्रेस 1 है, फोन नंबर से मैंने बोला 111 है। एक और स्टूडेंट आया बी, उसका एड्रेस है 82 एंड फोन नंबर दिस, एंड और उसकी पर्सनल डिटेल्स। ये तो चलिए इन्फो नाम की टेबल में उसका रिकॉर्ड स्टोर हो गया। बट जब वो डिपार्टमेंट में जाएगा तो उसको वापिस से अपना नाम तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, उसकी पर्सनल डिटेल्स में और चीज़ों की जरूरत नहीं है, बट फिर भी नाम रिपीट हो करके आ रहा है, अगर उसको नाम चाहिए, या फोन नंबर भी डिपार्टमेंट में चाहिए, तो यानी रिपीटेशन। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम एक ऐसा यूनिक नंबर मेंशन कर देते हैं उस बच्चे को, तो से उसको मैं बोल दिया एनरोलमेंट नंबर, ये एनरोलमेंट नंबर। अब ये एनरोलमेंट नंबर उसको सपोज मिला, एनरोलमेंट नंबर से
101, इसको मिला से 102, तो वही सेम एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे भी आ गया। तो यानी अगर वो ब्रांच में आता है तो 101 उसकी ब्रांच है, सपोज सीएस के स्टूडेंट्स है तो सीएस एंड और ये दूसरी डिटेल्स। 102 से ये स्टूडेंट ईसी का है एंड उसकी पर्सनल डिटेल्स एंड सो ऑन, इस टाइप से रिकॉर्ड्स आ गए। अब एनरोलमेंट नंबर आ तो गए, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट में बैठ करके किसी प्रोफेसर को, फैकल्टी को उसकी पर्सनल डिटेल्स गेट करवानी है तो वो कैसे गेट कर पाएगा? तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। अब रिलेशनशिप मेंटेन क्या करते हैं कि अगर गलती से हमने 101 एक और स्टूडेंट को अलॉट कर दिया, से स्टूडेंट नंबर सी, नेम है सी, तो ऐसे में क्या होगा, ये वापस से डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस डुप्लीकेट वैल्यू को अवॉइड करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन आता है, दैट इज ऑप्शन क्या है, हमारे पास में कुछ कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट्स, दीज आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शंस। वो कंस्ट्रेंट्स क्या है कि यूनिक। अब अगर मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट को इस जगह पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे यूनिक एनरोलमेंट नंबर पे, तो यूनिक मीन्स क्या होगा कि एक रिकॉर्ड मेरा ब्लैंक जा सकता है। अगर मैंने कहा कि ठीक है अभी आप एडमिशन तो ले लो, आपको एनरोलमेंट नंबर बाद में मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो बिना एनरोलमेंट नंबर के वो एंटर कर रहा है। यानी अब सेकंड में एम्प्टी एनरोलमेंट नंबर इंसर्ट नहीं करा सकते, यानी दैट इज योर यूनिकनेस कि एक के लिए ब्लैंक एनरोलमेंट नंबर मिल गया एंड कि उसको बाद में मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा, एंड सेकंड को मैं अब नहीं दे सकता, दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस। अब वो ठीक है हमने मैनुअली दे दिया, बट अगर सिस्टम की हम बात करें तो हम बिना एनरोलमेंट नंबर के किसी को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कॉलम है एनरोलमेंट नंबर वाला कॉलम, वो आपका नल नहीं होना चाहिए, तो दैट इज नॉट नल, दैट इज नॉट नल। अगर मैंने यहाँ इसको नॉट नल लगा दिया तो यूनिकनेस नहीं रहेगी, यूनिक लगा दिया तो नॉट नल नहीं रहेगा। अब अगर इन दोनों कंस्टेंट को एक साथ लगा दिया तो क्या हुआ, वो ब्लैंक भी नहीं रहेगा वो कॉलम एंड डुप्लीकेट वैल्यूज भी वहां पे इंसर्ट होकर के नहीं आएगी। बट यूजिंग दिस यूनिक एंड नॉट नल, हम मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द टेबल्स वी नीड प्राइमरी की। यानी क्या हुआ, प्राइमरी की मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू प्राइमरी की, दैट इज पीके हम बोल देते हैं प्राइमरी की। यानी हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को एक तरह से हम प्राइमरी की बना देते हैं, एक तरह से क्या हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं। अब प्राइमरी की बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फो नाम की टेबल में ये रोल नंबर 101 जो अभी मैंने दिया है, अब वापस से किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर ना पास्ट में कभी किसी को था, ना फ्यूचर में अब कभी किसी को मिलेगा। नेम सेम हो सकते हैं कईयों के, है ना, एड्रेस भी या फोन नंबर अपने फ्रेंड का शेयर कर लेते हैं। अब यही एनरोलमेंट नंबर अब ब्रांच में आता है, तो इनके बीच में कि हम क्या एक रिलेशनशिप मेंटेन करते थे, प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। अब फॉरेन की रिलेशनशिप मीन्स क्या हुआ कि डिपार्टमेंट में सपोज आपके 8 सेमेस्टर्स है, तो कम से कम आपकी एंट्री मिनिमम से मिनिमम 8 बार तो होगी ही होगी। यानी 101 फर्स्ट सेमेस्टर में, 10 उसकी डिटेल, 101 सेकंड सेमेस्टर में, या आपने कोई फाइन पे कर रहे हो तो हर सेमेस्टर 1-2 फाइन आप दे देते हो। तो यानी क्या हुआ, एनरोलमेंट नंबर 101 कितनी बार रिपीट हो रहा है, मोर देन 1, बट हियर 101 कितनी बार एंट्री हो रही है उसकी, 1। यानी क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री है 1 एंड इस जगह पे एंट्री हो जाएगी दैट इज मैनी। तो यानी ये किस टाइप का रिलेशनशिप हो गया, दैट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये मेरा डेटा, ये मेरी टेबल्स सारी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, नो रिपीटेशंस। नाउ दिस इज द डिजाइनिंग पार्ट। हम जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में दो चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मीन्स योर एप्लीकेशन, जिससे आप एंड यूजर को इंटरेक्ट करवा रहे हो, तो दैट इज अ फ्रंट एंड।
अब चाहे वो आपने फ्रंट एंड जावा में बनाया है या डॉट नेट में बनाया है या PHP या जो भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में आपने बनाया वो आप उसमें यूज में ले सकते हो। एंड बैकएंड जहाँ पे आपका सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल्स कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, दैट इज योर बैकएंड डेटाबेस। तो डेटाबेस अगर हम बोले तो डेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, डेटा मीन्स वॉट एवर वी इनपुट दैट इज योर डेटा, एंड उस या रॉ फैक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, एंड इतने सारे डेटा का कलेक्शन दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। एंड उन डेटा को हम किस में स्टोर कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो डेटाबेस इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पे मेरे पास में अभी सपोज ये 3 टेबल्स है, इन्फो, डीपीटी एंड लाइब्रेरी। अब आप लाइब्रेरी में आए तो लाइब्रेरी में भी क्या है, वो आपसे वापस से उस आपकी पर्सनल डिटेल्स या ब्रांच नहीं पूछेगा। अब वो यहाँ पे भी आप किसके थ्रू आइडेंटिफाई होंगे, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर के थ्रू, दैट इज योर फॉरेन की। तो यहाँ पे इसमें इसको भी इससे कनेक्ट कर दिया। अब लाइब्रेरी में एनरोलमेंट नंबर 101 कितनी बार बुक्स इशू एंड सबमिट करवाता है, 101 दिस, 101 दिस, यानी क्या हुआ, मोर देन वंस। इसका मतलब क्या हुआ, 1 to many रिलेशनशिप। ये हो गया। तो यानी हम क्या बोलते हैं कि हम जब फिजिकली टेबल पे काम कर रहे हैं तो देखिए इस डेटाबेस डिजाइन के अंदर कहीं पर भी डेटा आपका रिपीट होकर के नहीं आ रहा है, कॉलम आपके रिपीट होकर के नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज, देयर इज नो redundancy in database in the table, so that is your database। अब यहाँ पे एक बच्चे ने नॉट, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप मेंटेन तो कर दिया। इसका पर्पस क्या है, अगर हम ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप, तो क्या होगा, हमारे सिस्टम में अभी 2 ही स्टूडेंट है, एनरोलमेंट नंबर 101 एंड 102। एक बच्चा सीधे लाइब्रेरी में चला गया और मैं कहता हूं अभी यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, एंड वो सीधे लाइब्रेरी में जाकर के कुछ भी कहता है कि मेरा एनरोलमेंट नंबर 105 है एंड मेरे को बुक इशू करवानी है। अगर फाइल सिस्टम होगा तो क्या है, उसको पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं करता सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसको बुक इशू करके दे देगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने आपके सिस्टम में एंट्री कब होगी, जब एडमिन में आपकी एंट्री होगी। लेकिन क्या हुआ, एक बच्चा सीधे, क्योंकि इनमें रिलेशनशिप नहीं था, तो वो सीधे लाइब्रेरी में गया एंड लाइब्रेरी में जाकर के बुक इशू करवा ली। उसने बोल दिया ऐसी फर्जी में कि मेरा एनरोलमेंट नंबर कुछ भी 105, वो बुक इशू करवा के देन चला गया। लेकिन जब चेक किया डेटा तो 105 नाम का तो कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब यहाँ पे क्या हुआ, हमने रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया, 1 to many रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे प्राइमरी की हमने बनाई है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दैट इज अवर पेरेंट टेबल, एंड ये जो डीपीटी या लाइब्रेरी नाम की जो टेबल है इसको हम बोल सकते हैं दीज आर माय डिपेंडेंट टेबल्स। अब जब ये रिलेशनशिप 1 to many बन गया, अब अगर वो बच्चा डायरेक्टली 105 एनरोलमेंट नंबर 105 वो जाकर के लाइब्रेरी में एंट्री देता है कि भाई मेरा ये 105 है, एंट्री दो, एंट्री करो एंड मेरे को बुक इशू कर दो। जैसे ही 105 वो एंटर करेगा लाइब्रेरियन, इमीडिएटली उसको एक एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड टेबल्स है। वो क्या बोलेगा कि दिस एनरोलमेंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो यानी क्या है, सिस्टम में किन किन बच्चों को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जिनके एनरोलमेंट नंबर आपके एडमिन के पास में है, सिस्टम के पास में, दैट इज 101 एंड 102, सेम एज इट इज डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में भी एक बच्चा आया एंड उसने कहा कि मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़नी है एंड मैं मेरा एनरोलमेंट नंबर ऐसे फर्जी में बता दिया 104, एंड वो यहाँ जाकर के बैठ गया। लेकिन अगर कंप्यूटराइज सिस्टम होगा एंड अगर वो उसमें 104 एंटर करेगा कि ठीक है मैं आप लोग आपका रजिस्ट्रेशन करता हूँ यहाँ पे 104, जैसे 104 डालेगा तो सिस्टम एरर दे देगा कि दिस एनरोलमेंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो यानी ये प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बनाने का पर्पस ही यही है कि हमने इस टाइप से इनमें रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया। तो यानी एंट्री आपकी एक बार पेरेंट टेबल में होगी एंड उनकी डिपेंडेंट टेबल्स में वो एंट्रीज
वही आएगी जो आपके पेरेंट टेबल में रोल नंबर 101 एंड 102 एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की एंट्री आएगी। अब दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे सिस्टम, यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने डिसाइड किया कि इनके 3 डिजिट्स के रोल नंबर ना रख करके इनको हम 5, 6 या 10 डिजिट्स के कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा, यानी हर बच्चे का अभी जैसे 101 है, इसको मैंने बोल दिया कि एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने बोल दिया कि अब 101 की जगह पे ये सारे 1001 हो जाए, ये सारे 1002 हो जाए, एंड यहाँ से एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट हो जाए 101 की जगह पे। यानी अगर मेरे को अब ये सिस्टम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर जगह अगर ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा तो हर जगह इंडिविजुअल टेबल से मेरे को एक एक रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए फिर हमें क्वेरी चला करके देन उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर बेनिफिट क्या रहा, इससे बेटर है हम क्या करते हैं, एक ही टेबल में, दैट इज योर पेरेंट टेबल, पेरेंट टेबल में मैंने यहाँ से ये हटा करके इसको 1001 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जितने भी उससे एसोसिएटेड, पेरेंट टेबल से एसोसिएटेड जितनी भी टेबल्स है, से डिपार्टमेंट है या लाइब्रेरी है, उन सब टेबल से वो रिकॉर्ड ये सारे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, 1001 से अपडेट हो जाएंगे। लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में भी ये सारे 1001 से अपडेट हो जाएंगे। यानी क्या हुआ कि एक जगह चेंज करने पे उसका रिफ्लेक्शन सभी टेबल्स पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग, कि एक जगह चेंज किया तो रिफ्लेक्शन सभी पे आ रहा है। अब फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चे ने अपना लाइब्रेरी अकाउंट बंद करवाना है, ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में गया एंड अपना अकाउंट बंद करवा दिया, या फॉर एन एग्जांपल हॉस्टल है, हॉस्टल का इसमें अभी मैंने बनाया नहीं, सपोज हॉस्टल है, हॉस्टल छोड़ रहा है सिस्टम के अंदर, कॉलेज में पढ़ रहा है बट हॉस्टल छोड़ रहा है, तो हॉस्टल से उसका रिकॉर्ड इंडिविजुअली हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। बट अगर एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी ही छोड़ दिया, कॉलेज ही छोड़ दिया, किसी सपोज मैं बोलता हूँ कि एनरोलमेंट नंबर ये 1001, ये अब कॉलेज छोड़ रहा है किसी रीजन से, तब क्या होगा, अब अगर मैं उसका रिकॉर्ड, फाइल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर हमने उस रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट से डिलीट कर दिया, ठीक है, एडमिन ने इन्फो टेबल से भी रिमूव कर दिया, बट लाइब्रेरी या हॉस्टल में अभी भी वो रिकॉर्ड शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, योर डेटा इज इनकंसिस्टेंट, अपडेट नहीं हुआ सिस्टम। तो उस सिस्टम को अपडेट करने के लिए हमने ये रिलेशनशिप मेंटेन किए। अब यहाँ पे 1001 को मेरे को रिमूव करना है, तो मैं इंडिविजुअली, सपोज मैं सिस्टम में कहता हूँ कि 50 टेबल्स है, ये तो अभी हमने 3 टेबल्स बनाई है, 50 से मोर देन टेबल्स हमारे पास में क्रिएट होकर के आती है। अब अगर मैं 50 टेबल्स में से एक एक करके रिकॉर्ड डिलीट करने लग गया, तो ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करा, पेरेंट टेबल में से वो डेटा को मैंने रिमूव किया, नॉट डेटा, उस रोल नंबर को मैंने एनरोलमेंट नंबर को रिमूव किया, तो क्या होगा, उससे एसोसिएटेड, उससे उसकी डिपेंडेंट टेबल्स में से भी वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपका रिमूव होकर के आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग, एंड दिस इज द benefit, and this is the, you can say, best feature of using this DBMS, where when we shifted from file system to database management system। एंड ये जो हमने रिलेशनशिप मेंटेन किया है, तो हम बोल देते हैं कि भी ये एक तरह से RDBMS भी आ जाता है, कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, ये जो अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया, ये हमने टेबल बना लिया, टेबल के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया, एंड सारे रिडंडेंसीज को रिमूव कर दिया, पूरा डेटाबेस हमने प्रॉपर वे में डिजाइन कर लिया। क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन हम बनाते हैं, तो हम एप्लीकेशन का लेआउट डिजाइन नहीं करते, सबसे पहला हमारा काम होता है डेटाबेस, हम पहले डेटाबेस डिजाइन करते हैं, तो हमने ये डेटाबेस डिजाइन कर लिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल पार्ट। हमने फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये हमने जस्ट अभी एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है कि हाँ, इस टाइप से हमारा डेटा फ्लो होगा, कैसे हमें डेटा पे काम करना है, कहीं रिडंडेंसीज तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। वो नॉर्मलाइजेशन क्या है, वो आपको आगे दूसरे प्रोफेसर्स बता देंगे कि कैसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में इसको हमें काम करना है। तो ये जो अभी हमने डिजाइन किया है, अब इसको मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एक बार इरेज हो जाएगा तो फिर मेरे को सब वापस से बनाने में टाइम लगेगा। एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? चलिए चलिए, तो अब मैं आपको
एमएस एक्सेस पे हम एक बार काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू हैंडल एंड इजी टू मैनेज माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो यूजर फ्रेंडली है, इस पर हम काम कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ एक ब्लैंक डेटाबेस बनाता हूँ। देखिए डेटाबेस अभी मैंने बताया भी था कि डेटाबेस इज व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, क्योंकि हम प्रैक्टिकली अब काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम क्या बोलेंगे, दिस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड टेबल्स कंटेन्स व्हाट, डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। तो कॉलम के अलग अलग नाम हैं जिनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ये एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, ये दीज आर एट्रीब्यूट्स, एंड रोज को हमने बोल दिया कि दैट इज टपल्स, एंड अगर डीबीएमएस के फॉर्म में टेबल को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर एंटिटीज। तो ये एंटिटीज हमारे पास में आ गई, ठीक है। अब हम एक्सेस में आते हैं, एमएस एक्सेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत इजीली इस चीज को देख लेंगे। तो यहाँ पे ये एक ब्लैंक डेटाबेस है, मैं एक बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। ये डेटाबेस का देखिए, यहाँ मेरा माउस का पॉइंटर दिख रहा होगा राइट साइड में, फाइल नेम, ये डेटाबेस का जो भी नाम आपको देना आप नाम दे दीजिएगा, एंड इसका एक्सटेंशन है दैट इज ACCDB, एक्सेस डेटाबेस। एंड क्रिएट कहाँ हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो मेरा सिस्टम का पाथ है वहां जा रहा है। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पे, डीबीएमएस नाम का, जो भी मेरे को प्रेजेंटेशन देना था, तो उसी में मैं सेव कर लेता हूँ ये डेस्कटॉप, इसके अंदर ये डीबीएमएस एंड ओपन एंड ओके। ये तो ये मेरा डेस्कटॉप का पाथ आ गया जिसमें ये डीबीएमएस फोल्डर है, एंड क्रिएट। तो मैं इस पे क्रिएट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा डेटाबेस दैट इज योर एमएस एक्सेस डेटाबेस ओपन होकर के आ गया। अब ये जो हमने अभी डिजाइन किया था, इन्फो, डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी, ये टेबल्स में एक बार क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू पे क्लिक किया, तो ये पूछ रहा है टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मैंने दिया से इन्फो एंड ओके। ये बाय डिफॉल्ट एक प्राइमरी की दे देता है, इसको मैंने एनरोलमेंट नंबर दे दिया, ENRO एनरोलमेंट नंबर, इसको नंबर टाइप करें। नंबर देखिए, जो न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज होगी वो नंबर टाइप की होगी, एंड जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में या अल्फा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट अगर आप यूज में लेते हो, सपोज एड्रेस है तो एड्रेस में टेक्स्ट भी आएगा एंड न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ जाएगी, तो हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लेते हैं, एंड टेलीफोन नंबर है तो आगे नंबर टाइप का। तो यहाँ पे अभी मैं इसको ये प्राइमरी की हटा देता हूँ, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, नेम, एस नेम से टेक्स्ट, एंड उसका एड्रेस स्टूडेंट ADB। ऐड नाम का एक फंक्शन होता है, इसलिए हम ये कीवर्ड यूज में नहीं ले सकते, इसलिए मैंने एस दे दिया, एस फॉर स्टूडेंट, उसका एड्रेस। बस ये इतना ही बहुत है, इसको मैंने सेव कर दिया। एक और मैंने टेबल क्रिएट किया, ये ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दे रखा है, इसमें क्रिएट टेबल, ये सेकंड टेबल आ गई, इस पर राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गए, टेबल का नाम मैंने दे दिया से TEPT। यहाँ पे मैंने एंड मैं DPT एंड डिपार्टमेंट नंबर कर देता हूँ कि आपका एनरोलमेंट नंबर ले लेते हैं कहीं, ये भी मैं हटा देता हूँ आपका। नंबर एंड ब्रांच कौन सी है, ये ब्रांच टेक्स्ट टाइप का, एंड से सपोज ब्रांच में कोई फाइन आपने पे किया तो ये मैंने नंबर टाइप करेगा, तो भी मैं सेव कर देता हूँ। एंड एक और टेबल मैं बना लेता हूँ लास्ट, डिजाइन व्यू, इसको मैंने से दे दिया, लाइब्रेरी में से नंबर ऑफ बुक्स कितनी आपने इशू करा रखी है, नंबर टाइप का, एंड और भी डिटेल्स, डेट ऑफ रिटर्न और इन सब कुछ मैंने एक फाइन और बना दिया से नंबर टाइप का, तो सेव कर दिया। अब देखिए ये 3 टेबल्स हमारे पास में बन करके आ गई, इन्फो, डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी। अब इन्फो नाम की टेबल में मैं आया, जैसे मैंने बताया था कि इन्फो नाम की टेबल ये आपका एडमिन पार्ट है जो आपकी एंट्री यहाँ पे ले रहा है। मैं यहाँ आया, एनरोलमेंट नंबर दिया मैंने से 1,
नेम मैंने दे दिया दिस, एड्रेस दे दिया एड्रेस 1, एनरोलमेंट नंबर 2, नेम दिस, एड्रेस, एंड नंबर 3 एड्रेस 3, ये दे दिया, इसको सेव कर दिया। अब अगर सिस्टम में देखा जाए तो मेरे पास में यही रिकॉर्ड्स इंसर्ट होने चाहिए थे, यानी अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि अगर हम ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं, मैंने प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, तो क्या हुआ कि ये 105 या 104 एक रोल नंबर डिपार्टमेंट में या लाइब्रेरी में चला जाएगा जो सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब देखिए यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट में आता हूँ, डिपार्टमेंट, इस पर डबल क्लिक करा, एनरोलमेंट नंबर अभी 1 2 3 थे, मैंने 5 दे दिया, ब्रांच से CSE एंड फाइन से 1000, रोल नंबर 6 से इसी इसने भी 1005 दे दिया, एंड इसको मैंने सेव किया, ये सेव हो गया, बंद किया, ये बंद हो गया। दिस लाइब्रेरी में आया, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर से सपोज 7, नंबर ऑफ बुक्स उसने इशू करा रखी से 2 एंड फाइन से 2000, एक और से 8, नंबर ऑफ बुक्स से 3 एंड फाइन से 1000, एंड इसको सेव किया। अब देखिए अगर हम देखें तो हमारे इन 3 टेबल्स के अंदर इन्फो में अलग एनरोलमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट में आए तो इसमें अलग एनरोलमेंट नंबर है, एंड लाइब्रेरी में आए तो इनमें अलग एनरोलमेंट नंबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेटा आपका सही नहीं है, कंसिस्टेंट फॉर्मेट में नहीं है कि रोल नंबर कुछ और आ रहा है और बाकी डिटेल्स हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से लिंक होकर के आएगी। तब ऐसे में क्या हुआ, हमें इनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। तब मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं इनमें रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा, तो पहले मैं इन्फो टेबल के अंदर आया, यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड वापस से डिजाइन व्यू में चला गया, एंड डिजाइन व्यू में ये जो मेरा एनरोलमेंट नंबर है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक की दे रखी है, दैट इज प्राइमरी की, इस पे क्लिक किया तो ये चाबी का आइकन यहाँ पे बन करके आ रहा है, इट मींस दिस कॉलम इज नाउ प्राइमरी की। इसको सेव किया एंड इन्फो नाम की टेबल में जब मैं आता हूं, मैं वापस से रोल नंबर 1 एंटर करता हूं, दैट इज 4। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यानी प्राइमरी की बेनिफिट क्या है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मेरे को कोई दूसरा वैल्यू दे करके देन इसको सेव करना पड़ेगा, तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखिए इन्फो नाम की टेबल जो है हमारी, इसको मैंने प्राइमरी की यहाँ पे बना दिया, ये प्राइमरी की बना दिया, दिस इज प्राइमरी की। अब डिपार्टमेंट टेबल में आते हैं, तो डिपार्टमेंट टेबल में इनमें रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सबसे पहले काम मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को ये टेबल को ब्लैंक करनी पड़ेगी, क्योंकि अब डिपेंडेंट टेबल्स यानी डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी, इनमें वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो आपके पेरेंट टेबल यानी इन्फो नाम की टेबल के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट में आता हूँ एंड इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ, लाइब्रेरी में आए, इन रिकॉर्ड्स को मैंने डिलीट कर दिया। अब ये 3 टेबल्स है। अब यहाँ पे देखिए ये एक क्रिएट ऑफ मेन्यू आता है, इसमें यहाँ पे रिलेशनशिप, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, ये डेटाबेस टूल्स के अंदर रिलेशनशिप, ये ऊपर डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ये एक लेफ्ट हैंड साइड में ये वर्क प्लेस है, जहाँ मेरे माउस का पॉइंटर मूव करा रहा हूँ मैं, ये वर्क प्लेस जहाँ पे आपको इन टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन करना है। किन किन टेबल्स में आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उन टेबल्स को आप यहाँ पे ऐड करा दो। जैसे डिपार्टमेंट है, इन्फो पे क्लिक करा, ये ऐड करा दिया, लाइब्रेरी पे क्लिक करा, ये ऐड करा दिया, एंड क्लोज। ये इन्फो टेबल, ये लाइब्रेरी टेबल, एंड ये डिपार्टमेंट टेबल, ये हमारे पास में टेबल आ गई। अब देखिए ये इन्फो टेबल में चाबी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो होकर के आ रही है, या कईयों में क्या होता है कि ये डार्क फॉर्मेट में आता है, या जब हम ईयर डायग्राम उसमें बताते हैं तो इसको अंडरलाइन के थ्रू हम बता देते हैं कि दैट इज योर प्राइमरी की।
ठीक है, अब इनके बीच में हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। तो क्या करना है, देखिए नॉर्मली होता तो हम जब ऑरेकल डेटाबेस पे काम करते तो हम कमांड के बेस पे ये रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, बट हम माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली है, ड्रैग एंड ड्रॉप पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए ये एक मार्क आ रहा है, यानी आप इसको यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ आए एंड दिस, जब भी हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो ये खास ध्यान रखना कि उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। नाम सेम होने से मतलब नहीं है, जैसे मैंने एनरोलमेंट नंबर दिया तो मैं इसको डीपीटी नंबर भी दे सकता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी नंबर दे सकता हूँ, बट उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होंगे। तो देखिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके लेकर के आया और एनरोलमेंट नंबर पे ला करके यहाँ छोड़ दिया। जैसे ही मैंने यहाँ इसको ड्रॉप किया तो देखिए ये क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में इन्फो टेबल का एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पे रिलेशनशिप किसका हो रहा है, डिपार्टमेंट टेबल का एनरोलमेंट नंबर। एंड इसमें यहाँ पे एक चेकबॉक्स दे रखा है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इस पे हमने क्लिक किया तो एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे देखिए यहाँ पे दे रखा है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो इनको हम चेक कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया था कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट, कि एक में चेंजेस किया ऑटोमेटिकली चेंजेस सभी में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएंगे। एंड इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा एक मिनट, ये इसलिए बोल रहा है देखिए यहाँ पे कि द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक टेबल डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन यूज। तो यहाँ पे क्या है, ये टेबल्स आपकी ओपन हुई हुई है, तो इस टेबल्स को मैं एक बार क्या क्लोज कर देता हूँ। जिन जिन में मेरे को रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं उन टेबल्स को मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। एंड अब इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ आए एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कनेक्ट किया एंड क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे ये इन्फो नाम की टेबल में इस जगह पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, एंड डिपार्टमेंट नाम की टेबल में दैट इज इन्फिनिटी का सिंबल बन करके आ रहा है, यानी ये आपका 1 to मैनी रिलेशनशिप बन करके आ गया है। ये 1 to ये मैनी रिलेशनशिप बन गया, 1 to मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, सेम एज इट इज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ आए दिस एनफोर्स दिस एंड दिस क्रिएट, ये 1 to मैनी रिलेशनशिप बन करके आ गया। ये हमारा डेटाबेस का रिलेशनशिप जो हम कॉन्सेप्चुअल हम काम कर रहे थे। ये एक्चुअली क्या है, ये जो अभी मैंने ये आपको बनाया बताकर ये डिजाइन करके बताया, ये हमारा पेपर वर्क था। दिस इज योर कॉन्सेप्चुअल पार्ट। इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अब हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लॉजिकल पार्ट को हम फिजिकली इंप्लीमेंट कर रहे थे, ये फिजिकली आपने डेटाबेस में जाकर के क्रिएट करते हैं। डेटाबेस इज व्हाट, दिस इज एन एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन लैंग्वेज प्रोग्राम, तो वहां पे जाकर के आपने क्रिएट कर दिया। एंड इस रिलेशनशिप को हम सेव कर देते हैं एंड इसको बंद कर दिया। yes. अब देखिए ये इन्फो टेबल, अब मेरे पास में सिस्टम के अंदर 4 एनरोलमेंट्स नंबर के स्टूडेंट्स है, एनरोलमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब डिपार्टमेंट में मैं आता हूँ, डिपार्टमेंट के अंदर मैंने सपोज फॉर एन एग्जांपल एनरोलमेंट नंबर 1 तो है, तो मैंने CSE दे दिया, फाइन से 1000 CSE 2 CE is 2 3 से IP दे दिया एंड से 500 4 3 दे देता हूँ, देखिए IT। यानी क्या हो रहा है, इस डिपेंडेंट टेबल्स में ये रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट होकर के आ रहे हैं। रोल नंबर 1 की एंट्री 2 बार, 3, 4 जितनी बार भी आपको एंट्री देनी। अब अगर मैं गलती से यहाँ पे कोई एक एनरोलमेंट नंबर 5 दे देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा मेरे सिस्टम में, एंड मैंने यहाँ पे उसकी ब्रांच से CSE कर दिया एंड ये देखिए क्या कह रहा है, You cannot add or change a record because a related record is required in table info. कुछ क्वेरीज आ रही है क्या, मेरे को दिख नहीं रहा।
Is there any problem, any queries regarding this? यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, इस टेबल में डीपीटी टेबल के अंदर हम एनरोलमेंट नंबर 5 एंटर नहीं कर रहे, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड इन टेबल इन्फो, यानी दैट इज अ पेरेंट टेबल में वो रिकॉर्ड आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैं एंट्री नहीं दे सकता, तो मैं इसको फिर से सपोज 1 कर देता हूँ। सेम एज इट इज मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में भी मैंने एनरोलमेंट नंबर 1, नंबर ऑफ बुक्स 2, फाइन कितना 1 is 1 is 2 3 ये मैंने मल्टीपल एंट्रीज कर दी। अब यहाँ पे भी अगर सपोज कोई एक एनरोलमेंट नंबर 8 में देता हूँ एंड बुक दिस, जैसे एंटर प्रेस किया, सेम अगेन ये प्रॉब्लम दे रहा है, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल इन्फो। ये कुछ डाउट्स है क्या किसी को, क्योंकि कुछ कनेक्शन आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा, सेम मैंने 2 दे दिया। यानी क्या हुआ, अब ये जो काम हमारा इन टेबल्स में हो रहा है, ये सारा रिकॉर्ड, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होकर के आ गया। यानी हमने टेबल्स को नॉर्मलाइज फॉर्म में लिया है, उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया एंड डुप्लीकेसी हटा दी। एंड अब अभी हमने देखा भी है कि यहाँ पे जो एनरोलमेंट नंबर पेरेंट टेबल में है, दैट इज इन्फो नाम की टेबल में, वही एनरोलमेंट नंबर आपके डिपार्टमेंट या लाइब्रेरी में ही ऐड होकर के आएंगे, यानी सिस्टम में वही एग्जिस्ट करेगा जो आपके एडमिन के पास में रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब सिस्टम ने, अभी मैंने बोला कि सिस्टम ने कहा कि इनके सबके एनरोलमेंट नंबर सिंगल डिजिट के ना करके इसको 4 डिजिट्स के आप कर दो। तो अगर हम सपोज मेरे पास में बहुत सारी टेबल्स अगर हुई, तो उन टेबल्स में मैं एक एक करके अगर रिकॉर्ड अपडेट करने लग गया तो ऐसा बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करा, अब बेनिफिट हमारे पास में क्या है, फैसिलिटी, कि हम पेरेंट टेबल में चेंजेस करेंगे, ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट में भी चेंज होकर के आ जाएगा एंड लाइब्रेरी में भी चेंज होकर के आ जाएगा। से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर 1 को मैं अपडेट करता हूँ, से इसको मैंने कर दिया 1001, सेव किया, बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है। अब देखिए मैं जैसे डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो यहाँ देखिए, अच्छा ये इसको एक बार बंद करके, ये उस टाइम ओपन रह गई थी, सेव नहीं हुआ था। ठीक है, सेम एज इट इज लाइब्रेरी में हम आए तो देखिए लाइब्रेरी के अंदर जो 1 थे वो सारे 1001 हो गए। वापिस आते मैं 1003 कर देता हूँ दिस, तो जितने भी डिपार्टमेंट टेबल में 1000, ये डिपार्टमेंट टेबल में आए, ये सारे सेव नहीं होंगे रिलेशंस, ये चेंज हो गया, वो एक्चुअली टेबल को बंद करके देन ओपन कराया, ये 1003, 1001 एंड सो। यानी क्या हुआ, पेरेंट टेबल में हमने चेंजेस किए इनमें, तो चेंजेस ऑटोमेटिकली उनसे एसोसिएटेड जितनी भी टेबल्स है सब में चेंज होकर के आ गए। ये तो है, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग अपडेट्स। एंड सेम एज इट इज, अगर मैं कहता हूं कि अगर एक बच्चा कॉलेज छोड़कर लाइब्रेरी का अकाउंट बंद करा रहा है, से रोल नंबर 1003, ठीक है, तो उसने यहाँ से आपने एक एक करके रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। बट अगर वो स्टूडेंट सिस्टम छोड़ करके जा रहा है तो आप क्या करोगे, यहां से सपोज 1001 को मैं डिलीट कर देता हूं, ये डिलीट किया, तो अब ये क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप्स
that specify cascading deletes are about to cause one record in this table and in related tables to be deleted. Yes. तो देखिए डिपार्टमेंट में हम गए तो ये डिलीटेड, इसको अपडेट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ये रिफ्रेश यहाँ किया, इसको रिफ्रेश कर दिया। ये आपका अपडेटेड रिकॉर्ड यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा है वो सारा आपका इंप्लीमेंट होकर के आ गया। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। ये मैंने बताया डेटा, वॉट एवर वी इनपुट दैट इज योर रॉ फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन क्या है कि व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक वे, दैट इज योर इंफॉर्मेशन जिसको हम गेट कराते हैं। एंड DBMS, दो चीज़ें हैं इसमें, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम विच इज गोइंग टू मैनेज योर डेटाबेस, whether how to store your records or how to fetch the records from the database, that is your management system. And both that system, that is your application software, चाहे Oracle हम लेते हैं या Microsoft का SQL सर्वर ले लिया, MySQL ले लिया, या MS Access से अभी मैंने आपको बताया। अब है नीड ऑफ डेटाबेस कि ओवरव्यू ऑफ DBMS में कि हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। तो जो अभी हमने ये सारा देखा था कि हम डेटा को फाइल में भी स्टोर हो रहा है, लेकिन हमने देखा था कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट नहीं था एंड रिडंडेंसीज भी वहाँ पे बहुत सारी थी। तो वो सारी चीज़ों को हमने सिस्टमेटिकली यहाँ पे चेंज कर दिया। तो दैट इज योर नीड ऑफ DBMS। And the purpose of database system, the main purpose of database system is to manage the data that is in the university, to keep your data of students, teachers, courses, books, etc. And to manage this data, we need to store this data somewhere, and that somewhere is what? That is a database. In that database, we can delete, we can update, we can retrieve, we can manipulate the data records in that database. That's why we use database in our daily life. And the applications, these are some applications आज की तारीख में हर जगह कहीं पर भी हम डेटाबेस को यूज में ले रहे हैं। तो ये तो जस्ट एक एप्लीकेशंस है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में है या इंडस्ट्रीज में है, बैंकिंग सिस्टम्स, एयरलाइंस, रेलवेज, ऑनलाइन शॉपिंग। डेफिनेटली वी ऑलवेज डू शॉपिंग फ्रॉम ऑनलाइन। एंड देन ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम। अब ये देखिए ड्रॉबैक्स हमने देखा भी था कि क्या है, डेटा रिडंडेंसीज, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि रिपीटेशन ऑफ डेटा आपका आ रहा है, दैट इज योर डेटा रिडंडेंसीज। डेटा इनकंसिस्टेंसी, तो अभी बताया भी था कि एक में चेंजेस किया बाकी में चेंजेस नहीं हो रहे, दैट इज योर डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा आइसोलेशन, कि आप यूज में नहीं ले रहे एंड अलग से है तो डेटा इज इन आइसोलेशन फॉर्म। डिपेंडेंसीज, एटोमाइसिटी इश्यूज। अब हाँ, एक ये कॉन्सेप्ट है एटोमाइसिटी इश्यूज कि अगर हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो फॉर एन एग्जांपल लाइब्रेरी में जैसे सपोज आपके पास कोई एक स्पेसिमेन कॉपी है जो एक सिंगल कॉपी ही है, एक बच्चे को इशू कर दिया, किसी एक स्टूडेंट को इशू किया ए नाम के बच्चे को, एंड अब बी को रिक्वायरमेंट थी तो उसको बोला कि भी इसको सबमिट करो सो दैट बी कैन एक्सेस दैट डेटा, एक्सेस दैट इशू दैट बुक। तो आप क्या है, फाइल सिस्टम के फॉर्म में अगर आप वहां पे जाकर के बुक जमा करवा रहे हो तो क्या होगा कि ठीक है उसने इशू कर ले लिया है एंड आपके सिस्टम में, आपके रजिस्टर में, आपके पेज पे उसने उसको डिपॉजिट करना भूल गया एंड उसको कहीं और इशू कर दी। तो अभी भी क्या हो रहा है, आपका सिस्टम आपके नाम पे वो बुक इशू शो हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिसिटी डेटाबेस के फॉर्म में इजीली हो जाता है कि जब हम सबमिट करेंगे तो एक अगले को इशू कब होगी, जब वो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, आपका सिस्टम में वो बताएगा कि हाँ ये बुक है, तभी हम उसको आगे इशू कर पाएंगे। तो यानी पहले आप उसको डिपॉजिट करोगे तो जिससे आपने इशू कराई है, जिस पर्सन स्टूडेंट ने इशू कराई उसके अकाउंट में डिपॉजिट होगी एंड फिर देन वो आगे जाकर के इशू होगी। दैट इज योर एटोमेसिटी। एंड डेफिनेटली डेटा सिक्योरिटी है ही नहीं बिल्कुल भी फाइल सिस्टम के अंदर। तो यस, एंड एडवांटेजेस ओवर डेटाबेस DBMS ओवर फाइल सिस्टम, जितना भी डिसएडवांटेजेस वहाँ थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके एज एडवांटेजेस के फॉर्म में आ गए कि डेटा इज नो रिडंडेंट डेटा इज देयर, डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। अब ये इंटीग्रिटी पार्ट, ये इंटीग्रिटी यानी ये टेबल्स आपकी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में है,
फाइल सिस्टम में फाइल्स अलग अलग है, कोई मतलब नहीं है आपस में, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कोई एक में चेंजेस हो रहे थे दूसरे में रिफ्लेक्शन शो होकर के आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, योर डेटा इज इन इंटीग्रिटी फॉर्मेट। एंड प्राइवेसी, इसमें डीबीए का पार्ट आ जाता है कि अगर इसमें हम अलग अलग यूजर्स क्रिएट कर दें, तो जिसको हमें इशू ये फाइल्स डेटाबेस आपको एक्सेस करवाना है, यूज में देना है, तो हम उसको ऑथेंटिसिटी हम प्रोवाइड करा देंगे। इजी एक्सेस टू डेटा है। कॉन्करेंसी, ये सारा कॉन्करेंसी फॉर्म में वर्क हो रहा है, यानी आपने एक में चेंजेस करा तो रिफ्लेक्शन सभी में डिस्प्ले होकर के आ रहा है, यानी आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में बट कॉन्करेंट फॉर्म में आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट होकर के आ रहा है, एंड फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है डेटाबेस के। डिसएडवांटेजेस क्या है कि फाइल सिस्टम बहुत सिंपल वर्ड में या एक्सेल के अंदर आप डेटा को स्टोर करा सकते हो, बट यहाँ पे डीबीएमएस के अंदर क्या है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप डेफिनेटली लोगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, तो दैट इज योर कॉस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि अगर डेटाबेस पे अगर आपको वर्क करना, जैसे मैंने अभी एमएस एक्सेस पे आपको बताया, तो ये तो बहुत इजी था, इजी टू वर्क था, लेकिन जब हम ओरेकल पे काम करेंगे तो आपको वहाँ कमांड्स देनी पड़ेगी, विदाउट कमांड आप काम नहीं कर सकते, तो यानी वो कॉम्प्लेक्सिटी, एटलीस्ट यू हैव टू नो द क्यूरीज टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। अब यहाँ पे 3 लेवल आर्किटेक्चर है हमारे पास में, कि कैसे आपका डेटाबेस या सिस्टम वर्क करता है। तो दैट इज एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। तो देखिए यहाँ पे ये एक डायग्राम है कि ये आपका एक्सटर्नल लेवल हो गया, कॉन्सेप्चुअल लेवल हो गया और इंटरनल लेवल। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये जो पार्ट है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल वाला पार्ट, जो अभी मैंने बताया था कि आपने लॉजिकल लेवल वाला पार्ट, जहाँ पे हमने ये डेटाबेस को एक पेपर पे क्रिएट किया है, उसको अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, सारे रिलेशनशिप्स हमने मेंटेन कर दिए, सारे रिडंडेंसीज हमने रिमूव कर दी, एंड नाउ दिस इज फाइनल टू इम्प्लीमेंट योर डेटा, इम्प्लीमेंट दीज टेबल्स इन द डेटाबेस। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया। एंड इंटरनल लेवल क्या हो गया आपका, दैट इज अ फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल मीन्स अब इस डेटाबेस जो आपने कॉन्सेप्ट डिजाइन किए थे, उस कॉन्सेप्ट को आप फिजिकली कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज अ डेटाबेस में हम जाके क्रिएट कर रहे हो। इस डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, यूज में लेने के लिए हमारे पास में अलग अलग व्यूज है, दैट इज एक्सटर्नल लेवल। डिफरेंट व्यू लेवल्स आर देयर। तो इन व्यूज में अलग अलग यूजर्स है, यूजर 1 2 3, एंड डिफरेंट व्यूज है, व्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड यूजर्स, कि अगर आप फॉर एन एग्जांपल फेसबुक है, तो फेसबुक पे आप अलग अलग यूजर्स है जो एक एप्लीकेशन के बेस पे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहे हो, डेटाबेस में जाकर के मैच हो रहा है, एंड फिर आपका होम पेज डिस्प्ले होकर के आ रहा है, तो दैट इज योर व्यू लेवल। तो ये यहाँ पे, एंड दिस व्यू लेवल is the reason this level is called view, because the several users can view their desired data from the level, and this is called top level database architecture, in the database architecture. And this is your conceptual part, conceptual level. It is also called logical level. The whole design of the database, such as अब ये आ गया relationship among the data, schema of that data are designed in this level. एंड सिक्योरिटी कंस्टेंट्स, अभी जो मैंने कंस्टेंट्स आपको बताए कि प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनशिप, यूनिक या नॉट नल, या बहुत सारे कंस्टेंट्स यहाँ पे है, डिफॉल्ट एक कंस्टेंट हमारे पास में आता है। तो ये अलग अलग कंस्टेंट्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डीबीए का पार्ट है जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है ये आपका इंटरनल लेवल, जो भी मैं बताया कि फिजिकली हम डेटाबेस को जाकर के स्टोर करते हैं, दैट इज इंटरनल। चलिए, फिर है एब्स्ट्रैक्शन पार्ट। अब देखिए एब्स्ट्रैक्शन वर्ड, अगर आप लोगों ने ऊप्स पढ़ा हो, अगर कंप्यूटर साइंस के या जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस पढ़ रखी है, तो एब्स्ट्रैक्शन एक वर्ड आता है ऊप्स के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हम एक जगह
रख लेते हैं एंड बाकी रिमेनिंग पार्ट को क्या हम उसको हाइड करके रखते हैं, यानी यूजर इंटरेक्ट विद दैट पार्ट एंड जो इररिलेवेंट पार्ट है, जैसे यहाँ पे यूजर के सामने इस व्यू लेवल में यूजर के सामने जस्ट एप्लीकेशन आ रही है, उसको पीछे कोड क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, डेटाबेस क्या है उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको जस्ट अपने पार्ट से मतलब है। तो वो वाला पार्ट क्या है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें आपका इररिलेवेंट डेटा, इररिलेवेंट डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द यूजर। अब इसमें भी यही सेम पार्ट है, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। सेम वही वाली बात हो गई। व्यू लेवल जहाँ पे अभी यूजर्स, मल्टी यूजर्स अपने डेटा, अपने एप्लीकेशन से, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लॉजिकल लेवल, ये आपका लॉजिकल लेवल जो आपका डेटाबेस डिजाइन वाला पार्ट हो गया, दैट इज योर लॉजिकल लेवल। एंड थर्ड इज फिजिकल लेवल, जो आपका डेटाबेस, जो फाइनली आप डेटाबेस को डेटाबेस में क्रिएट करते हैं फिजिकली, तो दैट इज योर फिजिकल लेवल। ये इनकी डिटेल्स है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। एंड थैंक यू। Any doubts, any queries? Students can ask their queries in chat box. सर ये चेक बॉक्स कहाँ दिखेगा? It's in right side, sir. शो नहीं हो रहा है। सर कोई डाउट? Student can ask their queries. One query is there. Sir, what does one-to-many relationship mean? Does it mean वन टू मैनी रिलेशनशिप मीन्स, अभी हमने देखा भी था कि इन्फो नाम की टेबल में रोल नंबर 1 वो एक बार ही एंट्री हो रही है, बट डिपार्टमेंट टेबल है या लाइब्रेरी है, फॉर एन एग्जांपल आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आप अपना वहाँ एनरोलमेंट नंबर बताओगे कि ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, मेरे को बुक इशू करानी है, फिर डिपॉजिट भी कराया, फिर वापस इशू कराया कोई और फर्दर बुक, यानी क्या हो रहा है आपकी लाइब्रेरी टेबल के अंदर वो एंट्रीज, वो एनरोलमेंट नंबर की एंट्रीज मोर देन वंस है ना? तो यानी पेरेंट टेबल में आपकी एंट्री एक बार है, बार बार आपसे एंट्री नहीं ली जा रही, बट डेफिनेटली लाइब्रेरी है या डिपार्टमेंट है, आपकी एंट्रीज बार बार हो रही है, तो दैट इज योर मैनी, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप। what is conceptual level? कॉन्सेप्चुअल लेवल, दैट इज योर लॉजिकल पार्ट। ये वाला, अच्छा मैंने स्क्रीन एक बार शेयर बंद कर दिया, एक मिनट रुकिए। ये जो अभी हमने डिजाइन किया है, हमने अभी अपना कॉन्सेप्ट एक पेपर पे अभी हमने डिजाइन करके कि नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज फाइनल, नाउ दिस कॉन्सेप्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड फाइनली इन डेटाबेस फिजिकली। तो फिजिकली कब क्रिएट होगा, जब आप जाकर के डेटाबेस पे इंटरेक्ट करेंगे। जो मैंने टेबल्स वगैरह जो एमएस एक्सेस में बनाई है, दैट इज योर फिजिकल लेवल, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लेवल। एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल जो ये अभी हमने डिजाइन किया, दैट इज योर कॉन्सेप्चुअल। One more query is there. Can you add ER number as primary key in department table? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिर पेरेंट इन्फो टेबल एंड ईआर नंबर में फिर जो रिलेशनशिप मेंटेन होगा, वो रिलेशनशिप आपका 1 to 1 हो जाएगा, Okay. 1 to 1 रिलेशनशिप हो जाएगा। What is data isolation? डेटा आइसोलेशन, अब जैसे मैंने बताया कि आपने आजकल सब गूगल से सारा काम करते हैं, तो लाइब्रेरी अकाउंट तो खुलवा लिया, आपका रिकॉर्ड अभी भी लाइब्रेरी के अंदर सिस्टम में शो कर रहा है, बट आप उसको यूज में नहीं ले रहे, आप में
वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भी आपका अकाउंट इनएक्टिव हो रहा है, तो दैट इनएक्टिव डेटा दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड डेटा। Sir, any example for many to one relationship? Many to one relationship, like ये स्क्रीन एक बार में शेयर। अब मैनी टू रिलेशनशिप में क्या है कि एक टेबल, ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। यह मेरे पास में एक टेबल है ब्रांच नाम की टेबल, क्योंकि देखिए मैंने इसमें ब्रांच दे दिया, अदरवाइज होता है क्या है कि ब्रांच नाम की हम एक अलग से टेबल बनाएंगे। ये मैंने ब्रांच नाम की टेबल क्रिएट किया, ब्रांच, जिसमें CS IT EC, एंड इस ब्रांच को कितने स्टूडेंट्स मैं हैंडल कर रहे, तो मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बना दी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है एंड वो सेम ब्रांच को हैंडल कर रहे हैं, यानी मैनी टू वन, ये वाला सिस्टम है कि यहाँ पे इस ब्रांच नाम की टेबल में ये जो कॉलम है ये मेरा प्राइमरी की बन करके आएगा, प्राइमरी की, यानी क्या होगा, वापिस से मैं इस टेबल के अंदर CS नाम का जो कॉलम है वो मैं इंसर्ट नहीं करवा सकता, तो दैट इज योर वन, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको उस ब्रांच में है, तो दैट इज मैनी टू वन रिलेशनशिप। Thank you very much, sir. We are looking Thank you, sir. forward for Thank you. the next session. Okay. Okay. Thank you, sir.